کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو اپنایا کہ ختم نبوت کا انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے ظاہراً ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، ظاہراً تو کچھ ساتھ چلے، کچھ وقت کے لیے ساتھ رہے، لیکن عقیدے کے طور پہ کبھی انہوں نے خاتم المعصومین کا انکار کر کے، کبھی حضور کے بعد اور کئی لوگوں کو معصوم مان کر کئی اور عقائد کے ذریعے حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے، جب بھی کوئی باطل اپنے باطل عقائد کے ذریعے اسلام پر وار کرتا ہے، اس ملک کے یا مسلمانوں میں درد رکھنے والے لوگ سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے، وہ بتاتے ہیں اگر ختم نبوت کا کوئی انکار کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور جو ختم نبوت کے پیغام کا اعلان کرے یا ختم نبوت کی محنت کا انکار کرے یا ختم نبوت کی جدوجہد کا انکار کرے یا خاتم الانبیاء کی 23 سالہ زندگی کا انکار کرے، 23 سالہ دور کا انکار کرے، 23 سالہ محنت کا انکار کرے، حضور کے انقلاب کا انکار کرے، حضور کی دعوت کا انکار کرے، حضور کے بیان کا انکار کرے، حضور کے بیان کی تاثیر کا انکار کرے، ہم آئین کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات بھی کہہ سکتے یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کے لیے بھی وہی بات ہے، اس کے لیے بھی وہی فتویٰ ہے جو ختم نبوت کے منکر کے لیے فتویٰ ہے، منکر کے لیے فتویٰ ہے، منکر۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ باریکیوں میں جائیں گے تو مسئلہ اور کھلتا چلا جائے گا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اگلی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری رسول ہیں، حضور آخری نبی اور آخری رسول ہیں، حضور کو امت ملی ہے، حضور کی امت کتنی ہے؟ کہ حضور کی امت بڑی امت ہے، حضور کی امت کب تک ہے؟ کہ حضور کی امت قیامت تک ہے، حضور کے دین نے کب تک رہنا ہے؟ کہ حضور کے دین نے قیامت تک رہنا ہے، حضور کے دین نے کہاں تک رہنا ہے؟ کہ شرق و غرب، شمال و جنوب، ہر جگہ تک پھیلنا ہے، حضور کی بات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، آپ کی ختم نبوت کا سکہ ہمیشہ بجنا ہے۔ تو آپ کی نبوت کی زندگی کیا ہے؟ کسی کی 900 سال ہے، کسی کی 950 سال ہے، کسی کی 700 سال ہے، کسی کی 600 سال ہے، کسی کی 350 سال ہے، آپ کی نبوت میں قیامت تک رہنا ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ کی نبوت میں کب تک رہنا ہے؟ آپ نے دنیا میں کب تک رہنا ہے اور اپنی بات کو کب تک کرنا ہے؟ اگر ہم آ کر اس میدان میں جاتے یا اس علم کی دنیا میں جاتے، ہم اس سمندر میں غوطہ لگاتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے آپ آخری نبی ہیں، مگر نبوت کے لحاظ سے آپ کی نبوت کا دورانیہ جو آپ زندہ رہے وہ سب سے کم ہے اور سب سے مختصر ہے، یعنی وہ صرف 23 سال ہے۔ 23 سالہ دور نبوت آپ نے پایا، 23 سالوں میں آپ نے اعلان نبوت بھی کیا، 23 سالوں میں آپ نے ہجرت بھی کی، 23 سالوں میں آپ نے جنگیں بھی لڑی، 23 سالوں میں آپ نے معاہدے بھی کیے، 23 سالوں میں آپ نے علم بھی سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے عمل بھی سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے مارکے بھی کیے، 23 سالوں میں آپ نے معیشت سکھائی، 23 سالوں میں آپ نے معاشرت سکھائی، 23 سالوں میں آپ نے اخلاق سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے اخلاص سکھایا، 23 سالوں میں آپ نے زندگی کے نشیب و فراز بتائے، 23 سالوں میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتایا، 23 سالوں میں نماز بھی مکمل ہوئی، 23 سالوں میں روزے کا حکم بھی پورا ہوا، 23 سالوں میں عبادت کی بات بھی بتائی گئی، 23 سالوں میں ریاضت کی بات بھی بتائی گئی، 23 سالوں میں شادی بیاہ کا طریقہ بھی بتایا گیا، غمی اور خوشی کا اظہار بھی بتایا گیا، میدانوں میں جا کر سب بنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا، کھڑے ہو کر اعلان کرنے کی بات
भी बताई गई। 23 सालों में हिजरत भी हुई, 23 सालों में मेराज भी हुई, 23 सालों में सफर भी हुआ, 23 सालों में शादियां भी हुई, 23 सालों में निकाह भी हुए, 23 सालों में जनाजे भी हुए, 23 सालों में हुकूमत भी की, 23 सालों में रियासत भी बनाई, 23 सालों में अफराद भी बनाए और 23 सालों में कुरान भी नाजिल हुआ, 23 सालों में अल्लाह की किताब भी पूरी हुई, 23 सालों में अपने पूरे की पूरी जिम्मेदारी को पूरा भी कर दिया। जब नबूवत के 23 साल हो गए, हुजूर के 23 साल पूरे हो गए, रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को बुलाने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ पर रुक कर एक छोटा सा सवाल भी ज़हनों में बिठाइए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि आप आए इसलिए कि पूरी दुनिया पर दीन को गालिब करेंगे। 23 सालों के बाद जब आप दुनिया से जा रहे तो 9 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम ले रहा है, जो मक्का में है, मदीना में है, कुर्ब जवार में है। दुनिया सारी बाकी है, ज़माना सारा बाकी है, जमीन सारी बाकी है, समंदरों दरियाओं हवाओं फिजाओं रास्तों हुकूमतों इख्तिदारों में बहुत सारी दुनिया मौजूद है। अभी पूरी दुनिया पे दीन गालिब नहीं हुआ। आप खातमुल अंबिया हैं, आप दुनिया से रुखसत हो रहे, आपके दीन का क्या बनेगा? बताई हुई शरीयत क्या बनेगा? सिखाई हुई शरीयत क्या बनेगा? लाए हुए कलमे का क्या बनेगा? पढ़ी हुई नमाज का क्या बनेगा? की हुई इबादत का क्या बनेगा? सिखलाए हुए निजाम का क्या बनेगा? बताए हुए निफाज का क्या बनेगा? बनाई हुई मस्जिद का क्या बनेगा? पाक किए हुए घर का क्या बनेगा? बुतों को गिराई उस जगह पे बैतुल्लाह का क्या बनेगा? इस सही माशरे को सही सिम पर लेकर आए, इसका क्या बनेगा? तवज्जो करना, आप खातमुल अंबिया हैं तो आपकी उम्र आखिरुल उम्म है, आप आखिरी नबी हैं तो आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। नबी किसी और ने नहीं आना, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के गिर्द लोग ऐसे भेजे थे, जाओ जमा हो जाओ। मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारनी असहाबी, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना। मैं उनमें दुनिया तसव्वुर में जाता हूँ, मैं जाकर पूछना चाहता हूँ आपके लिए सहाबा को क्यों चुना? का इसीलिए चुना कि आपके बाद आपके दीन की हिफाजत इन्होंने करनी है, आपके शरीयत की हिफाजत इन्होंने करनी है, यहाँ तक कि आपके जिस्म की हिफाजत इन्होंने करनी है, किरदार की हिफाजत इन्होंने करनी है, अखलाक की हिफाजत इन्होंने करनी है, प्यार की हिफाजत इन्होंने करनी है, दीन की हिफाजत इन्होंने करनी है, बोल की हिफाजत इन्होंने करनी है। आपने इनको पढ़ाया है, उम्मत को इन्होंने पढ़ाना है, आपने इनको सिखाया है, दुनिया को इन्होंने सिखाना है। आपने तस्वीर इन्हें बनाया है, दुनिया के लिए तस्वीर इन्होंने बनना है। ये नक्शा बन गए हैं, ये मेमार बन गए हैं, ये मयार बन गए हैं, ये बुनियाद बन गए हैं, ये आगाज बन गए हैं, ये आखिरी नबी की उम्मत के पहले अफराद बन गए हैं, पहले अफराद बन के ये दीन बन गए हैं, ये शरीयत बन गए हैं, ये इस्लाम बन गए हैं, ये तसव्वुर बन गए हैं, ये नक्श बन गए हैं। मुझे फिर कहने दो, नागन चुरंगी के लोगों, कराची के लोगों, मेरी बात सुनो, मुझे फिर ये कहने दो, ये तस्वीर रसूल बन गए, ये तसव्वुर रसूल बन गए, शरीयत रसूल बन गए, मयार रसूल बन गए, किरदार रसूल बन गए, गुफ्तार रसूल बन गए, अफकार रसूल बन गए। बल्कि अगर मैं यूं कहूं, ये खातमुल अंबिया की दीन की महक बन गए, दीन की खुशबू बन गए, दीन की जुस्तजू बन गए, दीन की आरज़ू बन गए, यही मयार बनकर आगे बढ़े, यही तस्वीर बनकर आगे बढ़े। अल्लाह ने सब कुछ इनके हवाले कर दिया। और अगर मुझे क्या जुमला भी कहने दो तो आपके कान और सिमातों की नजर करते हुए आपके दिल के ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्लाह ने कुरान भी इनके हवाले कर दिया, रसूल भी इनके हवाले कर दिया, मक्का भी इनके हवाले कर दिया, मदीना भी इनके हवाले कर दिया, इतरत भी इनके हवाले कर दी, सुन्नत भी इनके हवाले कर दी, बयानिया भी इनके हवाले कर दिया, सूरत भी इनके हवाले कर दी, सीरत भी इनके हवाले कर दी, नबूवत का ऐलान भी इनके हवाले कर दिया, नबूवत का पैगाम भी इनके
हवाले कर दिया, नबूवत की पहचान भी इनके हवाले कर दी, नबी की पूरी जिंदगी इनके सुपर्द कर दी, इनके सुपर्द करते सब कुछ इनके हवाले किया। मैं यूं नहीं कहता, किसी दलील की बुनियाद पे कहता हूँ। दलील क्या है? कुरान में कुरान में अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन सारा का सारा सहाबा के लिए किया था, इसलिए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। हुजूर जा रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। दीन मुकम्मल हो गया, दीन कामिल कर दिया गया, दीन पसंद कर लिया गया, दीन रज़ा कर लिया गया। किसका दीन था? लकुम कहकर बताया, सहाबा का दीन था। लकुम कहकर कहा, तुम्हारे लिए पसंद किया था। लकुम कहकर बताया, तुम्हें दिया था। लकुम कहकर कहा, तुम्हारे हवाले किया है, दीन तुम्हारे हवाले हो गया। इसलिए रसूलुल्लाह ने पूछा था, बताओ मैंने तुम तक दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? सहाबा ने एक ज़बान होकर कहा था, सिर्फ पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। बात यहीं पे खत्म हो जाती, हुजूर खामोश हो जाते। मैंने अपना हक अदा कर दिया, दीन तक पहुंचा दिया। मगर यूं नहीं कहा, रसूल खुदा ने अगला जुमला कह दिया, मेरा काम ये था, मैंने तुम तक पहुंचाया है, दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर लिया, पसंद कर लिया, तुम्हें दे दिया। रसूलुल्लाह कहते हैं यहाँ तक देना मेरा काम था, तुम तक पहुंचाना मेरा काम था, रहती दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। अल्लाह ने भी इनके हवाले कर दिया, रसूलुल्लाह ने भी इनके हवाले कर दिया। सहाबा मैं तुम्हारे जूतों पे कुर्बान, तुम्हारे खानदान पे कुर्बान, तुम्हारी नस्लों पे कुर्बान, तुम्हारी सांसों पे कुर्बान, तुम्हारी आहों पे कुर्बान, तुम्हारी चौखट पे कुर्बान, तुम्हारे कदमों पे कुर्बान, तुम्हारे जमाने पे कुर्बान, तुम्हारे दौर में कुर्बान, तुम्हारी हमों पे लगने वाली खाक पे कुर्बान। सहाबा तुमने अल्लाह का दीन दिया हुआ दीन भी लिया, तुमने रसूलुल्लाह की बताई हुई शरीयत भी ली। न दीन को मिटने दिया, न शरीयत को मिटने दिया, न रसूल की जिंदगी को मिटने दिया। खातमुल अंबिया के दीन का डंका दुनिया में बजा दिया और दुनिया में बजाकर बता दिया जहां आसमान का सूरज नहीं पहुंच सका, अल्लाह का कलमा, अल्लाह के रसूल का कलमा पहुंचा है, अल्लाह का कुरान पहुंचा है, रसूलुल्लाह की शरीयत पहुंची है, अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचा है। आज रहती दुनिया तक आने वाली अजानों की सदाएं बता रही है। कोई पहुंचाने वाले आए थे, लिखा हुआ कुरान बता रहा है, कोई लिखने वाले आए थे, उठी हुई तलवारें बताती है, कोई तलवार लगाने आए थे, दुनिया में दीन का गलबा बताता है, कोई गलबा सिखाने आया था, अखलाक बताता है, कोई अखलाक देने आए थे, किरदार बताता है, कोई किरदार बताने आए थे, अफाल बताते हैं, कोई अफाल देने आए थे, नेकी बताती है, कोई नेकी देने आया था, शराफत बताती है, कोई शराफत बताने आया था, सच को वफा बताते हैं, कोई सच को वफा देने आया था, नूर बताता है, कोई नूर लेकर आया था, हक्कानियत बताती है, कोई हक्कानियत लेकर आया था, शर्फ बताता है, कोई शर्फ लेकर आया था, वकार बताता है, कोई वकार लेकर आया था, इबादत बताती है, कोई इबादत लाया था, सुन्नत बताती है, कोई सुन्नत बताया था। आज रहती दुनिया में दीन का बाकी रहना, कुरान का बाकी रहना, इस्लाम का बाकी रहना, नमाज का बाकी रहना, सच्चाई का बाकी रहना, सदाकत का बाकी रहना, दियानत का बाकी रहना, वफा का बाकी रहना, अज़मत का बाकी रहना, रिफतों का बाकी रहना, इबादतों का बाकी रहना, मोमिनों का बाकी रहना, मुसलमानों का बाकी रहना, मुत्तकियों का बाकी रहना, इक़्तिदार का बाकी रहना, इख्तियार का बाकी रहना, दीन का बाकी रहना, सीरत का बाकी रहना, मक्की जिंदगी का बाकी रहना, मदनी जिंदगी का बाकी रहना, लिबास पहनने का तरीका मालूम होना, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम होना, कदम उठाने का तरीका मालूम होना, चेहरे का हुस्न मालूम होना, जुल्फ का मालूम होना, लबों का मालूम होना, दाढ़ी का मालूम होना, पगड़ी का मालूम होना, मक्की जिंदगी का मालूम होना, मदनी जिंदगी का मालूम होना, दीन की हर कोड हर फेल का मालूम होना, दीन की हर हुक्म हर अमल का मालूम होना। कोई तो थे जो बताने आए थे, कोई तो थे जो समझाने आए थे, कोई तो थे जो खातमुल अंबिया के सामने बैठकर सब कुछ पढ़ा था। सवाल उठता है मौलाना साहब ये कौन थे? मैंने कहा
آپ کی لائٹیں بھی جلتی رہے، موبائل بھی چلتے رہے، پیچھے تک ہاتھ بھی کھڑے رہے، مکہ بھی بنے، آواز بھی آئے، یہی تو تھے جنہیں دنیا کہتی ہے صحابہ 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 صحابہ۔ کون بابا کون؟